Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. After a long time, you will be seeing a video uploading as you have some holidays. Now, I hope that you all were safe and are at home. So let's start our topic. In the previous session, you will be doing that is digestion or nutrition, you can say. So, in the continuation of that, we'll continue our topic, and the next topic is respiration. The next topic is respiration. Now, in digestion, you have studied about that the food is being digested and broken down into simpler forms to give you energy. But how this energy comes to you, that comes under the topic that is respiration. Now, the respiration involves two terms, that is gaseous exchange and breaking down simple food. Okay, so in respiration we have two parts, that is gaseous exchange and breaking down of simple food. Now this gaseous exchange is known as breathing. Okay, and breaking down simple food is known as cellular respiration. Now what is breathing? That you take out air, that you breathe in air and exhale out. This is known as your breathing. And the air you inhale out, it is used to break the food into simpler form. That is known as your cellular respiration, that gives you energy. I'll explain it again. Breathing is basically explained as when you inhale in air inside your body and exhale out. So the air which we inhale, basically we talk about oxygen. That oxygen is being used by the body to do some functions. But after doing the functions, it leads to evolution of carbon dioxide gas which exhale out from your body and is known as breathing. So inhaling and exhaling is known as breathing. So the oxygen that we inhale goes to break down the food, and this breaking down of food is known as your respiration. Okay, see, food plus oxygen gives you carbon dioxide plus water plus energy. See, आपने ऑक्सीजन यूज करे एंड आपको CO2 मिला, दैट इज योर ब्रीथिंग पार्ट. ओके, अब आपने ऑक्सीजन कहाँ यूज की? फूड को ब्रेक डाउन करने में यूज की, जहां से आपको क्या मिला? एनर्जी मिली. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP. So it is known as respiration. I hope this is clear to you. Now we have steps and process of respiration. The first is steps of respiration. Now respiration क्या है आपका? बेसिकली एक बायोकेमिकल प्रोसेस है that generally involves intake of molecular oxygen from the environment. Biochemical क्यों? Bio is living being. Chemical is chemical reactions going on in the living body. That's what is known as biochemical process. ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस मीन्स कि जो भी केमिकल रिएक्शंस एक लिविंग बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रही है, इट इज नोन एज बायोकेमिकल प्रोसेस. सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने जो ऑक्सीजन ली है वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगी एंड वो आपके फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगी. दैट्स व्हाट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस. अब इट इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट. नाउ स्टेपवाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद द ऑक्सीजन. ना फूड कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, हम कह रहे हैं हमने ऑक्सीजन ली है, बट वो कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैसे ऑक्सीडेशन हो रही है फूड की, वो देखते हैं हम. नाउ थर्ड इज कि आपने जो ऑक्सीजन ली है आपका फूड के साथ ब्रेक डाउन कर गया वो, एंड आपके साथ उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ, एंड दैट वेस्ट प्रोडक्ट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल इवॉल्व आउट. द फोर्थ इज कि आपकी एनर्जी रिलीज होगी जो आपका फूड ऑक्सीडाइज हुआ है उससे. So respiration में कौन कौन से steps involved है? Intake of molecular oxygen from environment, stepwise oxidation of food with oxygen, elimination of carbon dioxide produced during oxidation, and release of energy due to oxidation of food. उन सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, don't worry. Now अब रिएक्शन क्या है रेस्पिरेशन की? आपका कार्बन डाइऑक्साइड मतलब आपका जो ग्लूकोज है, आपका जो ग्लूकोज जो आपका फूड सबस्ट्रेट है, जो फूड आपका दैट इज C6H12O6 प्लस O2 gives you 6 CO2 plus water plus energy. This energy is your in the form of ATP, and ATP is your adenosine triphosphate. Okay, this is the reaction that is involved in respiration. Okay, now what are the process of respiration?
क्या क्या प्रोसेस स्टेप्स तो हमने देख लिए, क्या क्या आएंगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट एक ओवरव्यू है आपका. नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू कैरी आउट देयर लाइफ एक्टिविटीज, आप सबको पता है. ओके, दे ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम फूड, भी पता है आप लोगों को. Okay, food molecules hold energy in their chemical bonds, and bond energy is released by oxidation of the food molecules with the help of O2. Now what it says कि जो भी food molecules आपने लिए हैं वो energy hold करते हैं chemical bonds की form में. Means हमने जब bonds बनाए थे, हम आपको ionic bond, covalent bond पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है. वो बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, तो वो आपको एनर्जी रिलीज करते हैं. ओके, सो फूड मॉलिक्यूल क्या आपका बेसिकली यहाँ पे ग्लूकोज है. हमने जो यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल लिया है वो आपका ग्लूकोज है. बट प्रोटीन्स और फैट्स भी आपका एनर्जी सोर्स है, जहाँ पे अगर आपका सपोज आपके पास अगर ग्लूकोज की शॉर्टेज है तो आपकी बॉडी फैट्स यूज करेगी एनर्जी सोर्स के लिए एज सच. ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा आपको एनर्जी रिलीज होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा एज एंड प्रोडक्ट्स. ओके, now they release energy trapped in ATP. एनर्जी किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में, एंड ATP stands for adenosine triphosphate. कहाँ सिंथेसाइज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में. That's why mitochondria is known as powerhouse of the cell. Now see, ATP is described as the energy currency of the cell. ठीक है, it is formed by the formation high energy bond between ATP. एक्चुअली में क्या होता है, आपका एटीपी है वो ब्रेक डाउन होगा, बॉन्ड टूटेगा. आपको एक फ्लो चार्ट दिखा जिसमें एटीपी से एडीपी बन रहा है, एडीपी से एटीपी बन रहा है. जब हम एटीपी से एडीपी बना रहे हैं, टी से डी बना रहे हैं, तो वहां पे माइनस पीआई लिखा है. दिस पीआई इज योर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. जैसे ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा आपको एनर्जी मिलेगी आपको. ठीक है, नाउ अब ये एडीपी बना, अब एडीपी स्टेबल नहीं होता तो वहां पे पीआई गेन हो जाएगा, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेन हो जाएगा, एनर्जी लेगा एंड वापस एटीपी फॉर्म करेगा. ये साइकिल आपकी चलती रहती है. So ATP is described as the energy currency of the cell. It is formed by the formation of high energy bond between ADP is adenosine diphosphate and inorganic phosphate, that is PI. The bond in ATP, जो bond है आपका ATP के अंदर, वो ब्लॉक कर जाएगा easily to release energy in inorganic phosphate and ADP. I hope this is clear to you. Now, see an extending learning. ये क्या कह रहा है, ATP is the energy currency for the ATP is the energy currency, ये मैंने आपको बता दिया. Now, आप सेकंड पॉइंट देखिए, आपको लिखा है एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूजेस दिस एटीपी टू डिराइव दिस रिएक्शन. आपके रिएक्शन का एडीपी प्लस पी, सर्कल में पी लिखा है, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो क्या देगा आपको, एडीपी सिमिलर टू पी, यहाँ पे पी ज्वाइन हो जाएगा एंड क्या बनेगा, वो एटीपी. एनर्जी ली है, दैट्स व्हाई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंड वहां पे एनर्जी इक्वल होगी 30.5 किलोजूल पर मोल. ओके, अब जब ये टूटेगा तो सेम एनर्जी आपकी रिलीज होगी. ओके, Now, what is the flow chart of respiration? हमने बोल रहा कि रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. क्या क्या इन्वॉल्व है, सी एनवायरमेंट ने क्या किया, एनवायरमेंट में फ्रेश एयर अवेलेबल है, मीन्स जितना ज्यादा O2 होगा उतनी कम CO2 होगी. ठीक है, अब आपने O2 अंदर लिया, दैट इज इंस्पिरेशन. आपने अंदर लिया तो वो इंस्पायरेशन हो गया. लंग्स को गया, लंग्स के बाद वो O2 ब्लड के साथ मिक्स कर जाएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो जाएगा. क्यों, जब ब्लड के साथ, ब्लड को हम हीमोग्लोबिन Hb की फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, Hb के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, वो टिश्यूज में जाएगा, टिश्यूज से आपकी बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, सेल्स में जाएगा. सेल्स क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को यूज करेंगे, फूड को ब्रेक डाउन करेंगे एंड देन आपका टिश्यू फ्लूइड जनरेट हो जाएगा. ठीक है, अब टिश्यू फ्लूइड के जो CO2 कंटेंट रिलीज हुआ है वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा. अब वो लंग्स में जाएगा एंड लंग्स से वापस एक्सहेल आउट कर देगी और एक्सपायरेशन होगा वहां पे. ओके, तो दिस इज हाउ इट गोज इन एंड इट गोज आउट. कि आपका O2 कैसे अंदर आया, बॉडी ने कैसे यूज किया एंड कैसे उसे रिलीज आउट किया. ओके, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ aerobic, that is the introduction of your respiration and breathing. That's all for today. Please copy all the notes
Thank you.